हेलो सभी को वॉइस आ रही है मेरी अच्छी तरह से? Yes, sir. 321. Yes, sir. ओके ओके. 322. In last session, I do you a homework for this question. Which of the following is not a residual human organs? Everyone find this answer? This answer of this question? Sir, nicketing screen. No. Appendix. Appendix is present in human. It is a vestigial organs. Human में flattened teeth Sir, present. option B. No, B also are there in human. But option C, 4 flattened teeth are not there in. Option C. Option C. 4 flattened teeth are present in which animals? Snake. Not a snake, herbivorous animals. Okay, just like cows, buffaloes, sheep, goats. In humans, how many teeth are present? 32. Yes. 32. How many milk teeth are present in humans babies? Milk teeth 16. 16. 16 or 20? 16, no, sir. No, 20 teeth are present. Okay, so anyone classify the humans teeth? How was the 32 teeth is present? How will you classify them? Canines, incisors, molars, premolars. Okay, in their numbers, how many numbers of they are present? So there are 8 incisors, 4 canines, and 8 premolars and 12 molar teeth are present. Okay, बताओ incisor कितने रहते हैं? 8. incisor कितने रहते प्रेजेंट? 8. 8. canines 4. 4. premolars 12. premolars 8 रहते और molar 12 रहते. ओके 12. ओके. incisor कितने रहते? 8. 8. canines 4. 4. premolar 8. 8. yes, molar 12. yes. Okay, let's move next question. The theory of evolution was proposed by Darwin. Darwin theory, sir. yes, so everyone do a correct answer. Option B, Darwin. Okay, the metal constitute of chlorophyll is Iron. not a iron. Iron, sir. Magnesium. Yes, option D is correct, magnesium. Okay, option D is correct, magnesium present रहता है chlorophyll. Let's move next question. The life originate from Water. yes, everyone know that the life Air. is not a air. Life is originated from water. Okay, let's see next question. The vitamin which contain cobalt. Vitamin B12. B12. Option D is correct. B12. B12. Okay, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B1 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन. थायमीन. क्या? B2 जो राइबोफ्लेविन जो है तो B2 का नाम नेम है केमिकल. B2 का आता है राइबोफ्लेविन, B1 का आता है थायमीन, और विटामिन B12 का केमिकल नेम Cobalt. कोबैलेमाइन कहते हैं उसे. क्या? कोबैलेमाइन. ओके, विटामिन B6 का
विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? लावेल ना पायराडॉक्सिन कहते हैं हम विटामिन B6 को। विटामिन ए का केमिकल नेम बताओ मुझे। विटामिन ए का। पेना तर व्हायचं नाही ते क्वेश्चन नसते हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? Beta carotene. Beta carotene is a pigment. Retinol is a chemical name. Okay. विटामिन सी का? Ascorbic acid. यस, ascorbic acid. ओके। विटामिन डी का? कैल्सिफेरॉल। ओके, इतने ही। उसमें से हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं विटामिन को? कौन से प्रॉपर्टीज पर क्लासिफाई करते हैं विटामिन? सर वाटर सोल्युबल और Water insoluble soluble. यस, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। उनमें से वाटर सोल्यूबल कौन से रहते हैं? सर BOC. डी ई के यस, डी डी ई के डी के वाटर सोल्यूबल रहते हैं या फिर फैट सोल्यूबल रहते हैं? Fat. Yes, vitamin A, D, E, and K are the fat soluble, and vitamin B and C are water soluble. Okay. Let's move next question. The reproductional organ of amoeba is सिलिया सिलिया yes, cilia और उसका एक नाम है वो, other एक नेम है उसका। क्या कहते हैं? पैरापोडिया Yes, pseudopodia. Okay. Which of the following is known by the name of green protozoa? Green protozoa. देखो ये जो एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। सर लिशमानिया नो, यहाँ पर देखो यूग्लिना पता है? यूग्लिना यूग्लिना का कलर कौन सा रहता है? ग्रीन यस, ग्रीन कलर रहता है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी रहता है। और ये जो यूग्लिना है एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। ओके, ये दोनों के भी कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। और यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट है क्या? सेल वॉल असते यूग्लिना मध्ये? इन यूग्लिना देयर इज अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, समजते सगळ्यांना? हो सर हो सर. कनेक्टिंग लिंक समजते सगळ्यांना काय असतं? हो सर. Okay. हो सर. Euglena is the connecting link between plants and animals. Okay. Let's move next question. Which of the following protozoa is known as connective link of the plant and animal? यूग्लिना Euglena. Yes. यूग्लिना सभी एक बार बताओ अनम्यूट करके। यूग्लिना Yes. Euglena. Okay. Let's move next Euglena. question. In human body, a fluid substance इंटामीबा हिस्टोलिका इज फाउंड इन। यहाँ पर नेमली इंटामीबा हिस्टोलिका है। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में रहते हैं हमारे। सभी को पता है ना अमीबा, इंटामीबा हिस्टोलिका? कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम। कौन से फाइलम में प्रेजेंट रहती है कैनल सिस्टम? Porifera. यस, पॉरीफेरा। ओके, क्या रहती कैनल सिस्टम? सर वाटर एंटर और एग्जिट थ्रू ओस्टिया और ऑस्कुला रिस्पेक्टिवली। यस, उसके बॉडी में वैकेंट स्पेसेस रहती है जिसके थ्रू वाटर का फ्लोइंग होता है, उसके साथ मिनरल्स और जो बाकी लिक्विड रहते हैं वो फ्लो होते हैं उस कैनल सिस्टम से। लेट्स मूव सर नेक्स्ट। 340 का आंसर क्या है? 340 का इंटेस्टाइन। ओके ओके सर. बडिंग इज फाउंड इन, किसमें प्रेजेंट रहती है बडिंग? हाइड्रा हाइड्रा. यस, हाइड्रा। साइकोन में क्या होता है? साइकोन सर 341 स्पॉन्ज फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके,
सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन रहता है और जो असेक्सुअल रहता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला डज नॉट पोजेस सीजो? Sir, repeat 341. यस 341 क्या? सर प्लैटिहेलमिन्थस एसिलोमेट है वो. यस प्लैटिहेलमिन्थस. कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? 341. यस कैनल सिस्टम पता है सभी को? Yes, sir. यस सर. यस जो कि पोरिफेरा इस फाइलम में प्रेजेंट है. ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट पोरिफेरा. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटिस कौन सा रहता है ब्रायोफाइट में? Archaegonium. यस ऑप्शन Spore फीमेल. यहाँ पर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछा है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आएगा आर्चिगोनियम. अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूछा होता तो फिर एंथ्रेडियम आता हमारा आंसर. ओके सर वो क्या है सर, एक्सप्लेन कीजिए. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि हमारे मेल में रहते हैं उसी तरह से उसके थ्रू उसके रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जिसे हमारे भाषा में जैसे प्लांट्स में एंड्रोशियम गाइनोशियम रहता है उसी तरह ब्रायोफाइट में उसी को हम आर्चिगोनियम एंड एंथ्रोडियम कहते हैं. ओके जिस तरह से एंड्रोशियम गाइनोशियम रहता है प्लांट में उसी तरह से ब्रायोफाइटा का जो फैलम है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहता है उसे एंथ्रोडियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम आर्चिगोनियम कहते हैं. ओके जो स्पोरेंजियम रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, किस फैलम में या फिर किस प्लांट में बता सकते हैं आप? फंगस में. यस स्पोर फॉर्मेशन तो फंगस में भी होता है लेकिन जो फर्स रहते हैं हम यहाँ पर प्लांट के बारे में बात करें तो फर्स जो रहते हैं जो कि टेरिडोफाइटा में आते हैं उसमें भी स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है. ओके लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस सीड बट नॉट अ फ्लावर? सर पीनस. यस पाइनस पीपल. नॉट अ पीपल. पीपल. यहाँ पर सीड का प्रोडक्शन होता है लेकिन फ्लावर का नहीं होता. सर पाइनस कौन सा प्लांट है सर? जिम्नोस्पर्म कैटेगरी का प्लांट है पाइनस. जिम्नोस्पर्म में आता है. जिस तरह से साइकस होते हैं ना उसी तरह से पाइनस भी एक प्लांट है. देखो माइंड किस प्लांट को कहते हैं? पाइनस फिश. माइंड मिंट इसको सर पेपरमिंट वो उससे बनता है ना पेपरमिंट. पुदीना पता है सभी को? हाँ यस सर plant है. पुदीना पुदीना. उसी को कहते हैं मिंट. ओके लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंजेस इज primarily based on बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कैनल सिस्टम? सर हर एक स्पॉन्जी में कैनल सिस्टम हो ही ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता. हाँ वही पॉसिबल नहीं होता लेकिन उसी के बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ना किस स्पंजेस में कैनल सिस्टम प्रेजेंट है या फिर किस नहीं. तो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पूछे तो हम कैनल सिस्टम के थ्रू उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ स्पंजेस में कैनल सिस्टम प्रेजेंट है कुछ में नहीं. सर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं ना, टिश्यू ग्रेड ऑर्गन ग्रेड इस पर भी. लेकिन प्रीमियरली बेस यानी कि यहाँ पर हम यानी कि मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं. ओके हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे भी कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें प्रीमियरली बेस का है तो हमें कैनल सिस्टम आंसर देना है. ओके अगर यहाँ पर कैनल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता दूसरा कोई ऑप्शन होता तो फिर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की ओर जाते हैं. ओके ओके सर. ओके सर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जिम्नोस्पर्म? फ्यूनेरिया. यूनेरिया. फिनेरिया. ओके और कोई ऑप्शन? नहीं सर वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है. यस फिनेरिया जो है ब्रायोफाइटस है. यहाँ पर चिलगोजा यानी नो वालनट आल्सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट. यहाँ पर जो चिलगोजा पता है आपको? ये जो पाइनस प्लांट के जो फ्रूट रहते हैं ना ड्राई फ्रूट उसको हम चिलगोजा कहते हैं. इसलिए इसको इस क्वेश्चन से हमें कंफ्यूज हो गया है जो कि एक पाइनस प्लांट है. ओके
पाइनस प्लांट के जो फ्रूट रहते हैं उसको हम चिलगोजा कहते हैं। आ गए समझ में? यस सर। तो ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूज किया हमें। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ हर्ट चेंबर फाउंड इन कॉकरोच। 13. यस, ऑप्शन डी 13. 13। एवरीवन नो दिस क्वेश्चन आंसर? सभी को मालूम है 13 रहते हैं। यस सर। Yes, sir. Tube feet is the locomotory organs present in Starfish. yes Starfish. Starfish, sir. yes starfish means present. Starfish. Okay, let's move next question. Energy flow in ecosystem is All round. all around या फिर unidirectional? Unidirectional. 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 यूनिडायरेक्शनल। ओके, यूनिडायरेक्शनल रहता है इकोसिस्टम में हमारा एनर्जी का फ्लो, जो कि रिवर्स नहीं होता। पिरामिड दैट इज नेवर इन्वर्टेड इज, कौन सा पिरामिड इन्वर्ट नहीं होता? इकोसिस्टम सर के ये बारे में क्वेश्चन ही समझा नहीं सर। क्या हुआ? क्वेश्चन ही Size. समझा नहीं, पिरामिड मतलब Sir, कौन सा mass. pyramid? इकोसिस्टम पता है सभी को? इकोसिस्टम पता है? इकोसिस्टम Yes, Yes sir. sir. Transfer of energy. Yes, sir. यस, वहाँ के जो पैरामीटर रहते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, Consumer. कंज्यूमर्स। ओके, तो उसमें एनर्जी का भी पैरामीटर रहता है। Decomposers. डिकम्पोजर्स लास्ट में आते हैं, उसमें एनर्जी का भी पैरामीटर रहता है, मास का भी रहता है, नंबर का भी रहता है। Yes sir. ओके, तो उसी के पैरामीटर के बारे में हम Size बात का नहीं करें। रहता सर। Energy. साइज का नहीं रहता, लेकिन मास का रहता है। Energy. Okay. कौन सा आएगा फिर इसका आंसर? Energy. यस Energy. यस, एनर्जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनर्जी। पॉन्ड इज डिफाइंड एज, क्या कहते हैं हम पॉन्ड को? Natural ecosystem. यस, ऑप्शन सी इज Natural करेक्ट, ecosystem. नेचुरल Ecosystem. इकोसिस्टम। Option C. नेचुरल इकोसिस्टम। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इन अ फूड चेन इज कंपनसेटेड बाय, यानी कि किस फूड चेन का दुष्परिणाम है कि जो कि Food web. Food web. Food web. यस, फूड वेब। Food web, sir. Yes, option C is correct, food web. Okay, let's move next question. Which of the following is an example of man-made ecosystem? Tissue culture. Tissue culture. यहाँ पर हम इकोसिस्टम कर रहे हैं। इकोसिस्टम, टिश्यू कल्चर इज लैबोरेटरी मेथड कह सकते हैं उसको, जो कि Herbarium. Option A, sir. Option A, herbarium. Herbarium. यस, एक्वेरियम और हेर्बेरियम दोनों भी आएंगे इसके सही। ओके, एक्वेरियम भी हम मैन मेड करते हैं ना। मराठी में उसका मीनिंग क्या है? एक्वेरियम म्हणजे जे पाण्यात मासे वगैरे बनवतो ना, पास ठेवण्यासाठी एक्वेरियम। So blue revolution. यस, ब्लू रिवोल्यूशन इज अ कंसेप्ट है एक, लेकिन एक्वेरियम हो जो हमारे घर में कुछ वाटर रखते हैं हम, उसमें कुछ मछलियां वगैरह छोड़ते हैं, तो उसी को हम एक्वेरियम कहते हैं। ओके, और हर्बेरियम जो गार्डन से रिलेटेड कंसेप्ट है। ओके, समझते हैं सगळ्यांना? हो सर. Yes sir. हो, sir. द अल्टिमेट एनर्जी सोर्स ऑफ इकोसिस्टम, हे सगळ्यांना माहिती पाहिजे कोण सा सोर्स आहे? Solar energy. यस, सोलर एनर्जी। ओके, Solar energy. यस। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, किसने दी थी टर्म इकोसिस्टम? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोस्टलर। टेंसले ने दी थी, किसने? टेंसले। टेंसले। आवाज मत करो। टेंसले ने दी थी, किसने? टेंसले। एक बार रिपीट करो सभी अनम्यूट करके। Tansley. Tansley. The term of ecosystem was given by Tansley. Okay, let's see next question. In a food chain, maximum energy is stored in, Decomposer. यहाँ पर एनर्जी स्टोर के बारे में पूछा है। स्टोर किसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं? प्रोड्यूस सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो,
प्लांट्स पता है सभी को? यस सर। Yes, sir. प्लांट में सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर की जाती है, ओके, जो कि ज्यादा एनर्जी प्लांट में रहती है। उसके बाद सर लेकिन पिरामिड में तो ये दिखाया गया ना, मतलब 1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूसर में होते हैं, तो 1000 किलो कैलोरी एनर्जी डिकम्पोजर में होती है। जब आप फूड चेन मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पूछे क्या, जो प्लांट रहते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करते हैं, उसके बाद उसका पिरामिड लेस हो जाता है। प्रोड्यूसर के बाद जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर आता है तो उसके पास कम एनर्जी रहती है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम एनर्जी मिलती है सेकेंडरी कंज्यूमर को। आ रहा है समझ में? वहां पर कैलोरीज के बारे में Yes, sir. दूसरी कोई कंसेप्ट दी होगी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी की बात करें, स्टोर्ड मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, तो प्रोड्यूसर में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है ना एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट में ज्यादा एनर्जी स्टोर रहती है, उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं उसमें। समझते ना? यस सर। इन अ फूड चेन लायन इज सेकंडरी कंज्यूमर, Secondary consumer. ट्राइशरी कंज्यूमर। ट्राइशरी कंज्यूमर। अब देखो यहाँ पर दोनों भी ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले। कुछ बच्चे कह रहे Sir, हैं BA, secondary consumer. देखो सर टर्शरी कंज्यूमर। जो लायन है वो सेकेंडरी भी आता है और टर्शियरी भी आता है। जैसे देखो अगर कोई ग्रास होगा, ग्रास को अगर कोई रैबिट ईट कर रहा होगा तो रैबिट बनेगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, और रैबिट को लायन ईट करेगा तो बनेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके। लेकिन अगर ग्रास को रैबिट ईट कर रहा है, रैबिट को कोई फॉक्स ईट कर रहा है और फॉक्स को लायन ईट कर रहा है, तो फिर लायन क्या बनेगा? टर्शियरी कंज्यूमर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Depend Yes, upon sir. ecosystem. डिपेंड अपॉन इकोसिस्टम। तो हम इस क्वेश्चन कंज्यूमर सर। हेलो, तो जब आपको एग्जाम, कंज्यूमर सर। जरा असा प्रश्न आपल्याला एक्झाम मध्ये येणार नाही, कन्फ्युज करणार प्रश्न येणार नाही, एक तर टर्शियरी कंज्यूमर दिला असेल किंवा सेकंडरी। एक्झाम मध्ये आपल्याला एकच ऑप्शन दिलेला असेल, असे दोन्ही कन्फ्युज करणारे ऑप्शन दिले नसतील, ओके। तर दोन्हीतनं एक कोणतं बी ऑप्शन जे अप्रोप्रिएट असेल ते त्यावेळेस चूज करायचं। सर पण इथे पण तुम्ही जसं सांगितलं तसं सेकंडरी आणि टर्शरी मध्ये काही फरक तर नव्हता सर एवढा। एवढा फरक येत नाही, पण जर समजा तुम्हाला एक्झाम मध्ये जर सेकंडरी कंज्यूमर ऑप्शन दिलंच नसेल, समजा सेकंडरी कंज्यूमर ऑप्शन दिलेलंच नसेल एक्झाम मध्ये, तर मग टर्शियरी कंज्यूमर ऑप्शन, सेकंडरी कंज्यूमर ऑप्शन नाहीये, मग टर्शियरी कंज्यूमर आहे तर मग त्याला क्लिक करा। जर टर्शियरी कंज्यूमर ऑप्शन नसेल तर सेकंडरीला क्लिक करा। समजते ना? ओके सर। ऑप्शनच्या अकॉर्डिंग कधी पण अगोदर चारही ऑप्शन रीड करायचे, जे मोस्ट अप्रोप्रिएट वाटल त्याला क्लिक करायचं। कधी कधी काय होतं, दोन्हीत बी प्रेझेंट असतं, एकामध्ये लेस क्वांटिटी मध्ये असतं, एखाद्या याच्यात मेजर क्वांटिटी मध्ये असतं, तर मग क्वेश्चन आणि ऑप्शनच्या कंपॅरेटिव्ह आन्सर क्लिक करायचं, ओके। इकोसिस्टम कन्सिस्ट ऑफ, काय काय असतं इकोसिस्टम मध्ये प्रेझेंट? All of the above. Yes, All of the all of the above. above. इकोसिस्टम मध्ये प्रोड्युसर्स, कंज्युमर्स अँड डिकम्पोजर्स सर्व असतात। इन अ फूड चेन टोटल अमाउंट ऑफ लिव्हिंग मटेरियल इज डिपेक्टेड बाय Trophic level. ट्रॉफिक लेवल्स। और कोई बंदा ऑप्शन देना चाहता है, आंसर देना चाहते हैं? pyramid of energy. नॉट अ पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पर क्या पूछा है मैं? टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, लिव्हिंग मटेरियल के बारे में, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, म्हणजे किती अमाउंट मध्ये लिव्हिंग मटेरियल प्रेझेंट असतं। तर बायोमास, बायोमास समजतं ना? समजा प्लांटचा बायोमास जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू कार्निवोरस या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्वांटिटी, यस सर। तो फिर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल के बारे में पूछा रहा है, क्या? अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल। अगर हमें एनर्जी के बारे में पूछ रहा होता, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ लिविंग मटेरियल पूछा होता, नंबर, तो हम पिरामिड ऑफ नंबर ऑप्शन आंसर देते, ओके। यहाँ पर नंबर के बारे में अगर पूछा होता, लेकिन यहाँ पर अमाउंट के बारे में पूछे हमें, ओके।
These belong to the category of primary consumers. Insects and cattle. Option D, sir. Yes. Insects and cattle. सभी को पता है ऑप्शन डी इंसेक्ट एंड कैटल. Biological equilibrium is found among the A. A, sir. A. yes option A is correct. Option Producers, consumers and decomposer इन तीनों के बीच biological equilibrium रहता है. Most stable ecosystem is Marine. Option B. yes marine ecosystem. क्योंकि marine system क्यों stable है आपके हिसाब से? सर कंज्यूमर प्रोड्यूसर. Yes, okay. पता है सभी को इसका आंसर. Most diverse organism of ecosystem are diverse यानी कि उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा है या फिर उसके कंज्यूमर्स. Consumers. कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स. मोस्ट डाइवर्स. The producer. यस ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स. यहाँ पर मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स. समझते हैं सगळ्यांना? हेलो स्टूडेंट. ओके. The Great Barrier Reef along the east coast of Australia can be categorized as Biomass. बायोमास. ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ along the east Ecosystem. इकोसिस्टम. यस ये जो ग्रेट बॅरियर रीफ आहे समुद्राखालचे बेटे म्हणतात आपण जे ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया येथे लोकेट आहे समुद्राखालचे बेटे. तर मग काय येईल आन्सर? बायोमे. इकोसिस्टम. यहाँ पर बायोमास के बारे में क्या है? यहाँ पर ऑप्शन अधूरा दिया है, बायोमास कर रहे थे यहाँ पर. ओके फिर इसका आंसर आएगा इकोसिस्टम. ओके हेलो समझता है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The amount of living matter present in the ecosystem at a given time is called Biomass. बायोमास. और कोई ऑप्शन? स्टैंडिंग क्रॉप के कंसेप्ट के बारे में पता है? स्टैंडिंग क्रॉप पता है सभी को? नहीं पता. No, sir. अब देखो बायोमास में जो आते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं उसमें. जैसे कि अगर किसी एनिमल की बॉडी डेड हो गई तो उसी में भी बायोमास इंक्लूड होता है. ओके लेकिन जो लिव्हिंग मॅटर आहे उसी को हम कहते हैं स्टँडिंग क्रॉप. म्हणजे मराठीत अर्थ काय स्टँडिंग क्रॉपचा? उभे असलेले पीक म्हणजे जेवढे आहेत तेवढेच. ओके तर याचा ऑप्शन बी स्टँडिंग क्रॉप कहते हैं उसको. ओके इकोसिस्टम के कंसेप्ट के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट पता होगी ना आपको? इकोसिस्टम होगा ना आपको चैप्टर बुक में? हेलो समझते हैं सगळ्यांना? तो हम क्या कहते हैं इसे? Yes, sir. तो इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. अगर यहाँ पर ऐसा दिया होगा द अमाउंट ऑफ नॉन लिव्हिंग मॅटर प्रेझेंट इन इकोसिस्टम ऍट अ गिवन टाइम, मग काय लिहिलं असतं आपण त्याचा आन्सर? बायोमास. ओके अगर यहाँ पर नॉन लिविंग के बारे में हेलो स्टूडेंट अगर यहाँ पर अगर यहाँ पे हमने नॉन लिविंग मैटर के बारे में क्या होता नॉन लिविंग तो फिर क्या था हमारा आंसर? Biomass. Biomass. यस बायोमास. सर स्टैंडिंग स्टेट यानी क्या होता है?
यानी की अवेलेबल स्टँडिंग स्ट्रेट म्हणजे त्या सिच्युएशनला अवेलेबल असणाऱ्या प्रजाती किंवा किती लिव्हिंग थिंग्स त्यावेळेस प्रेझेंट आहेत. Yes. आपण पिरामिड्स बघता की बायोमास असतो इन्व्हर्टेड, म्हणजे सुरुवातीला बायोमास जास्त असतो, नंतर कमी 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 होत जातो. Yes, sir. Let's see next question. Stratification occurs in The tropical forest. देखो इसका ऑप्शन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डिसिडियस फॉरेस्ट दोनों भी इसका आंसर आएगा. ओके, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अँड डिसिडियस, पानगळी वनस्पती म्हणतो आपण, पानगळी झाडं जिथे अवेलेबल असतात त्याला आपण म्हणतो डिसिडियस फॉरेस्ट. ओके, Sir, stratification यानी क्या होता है? वेजिटेशन म्हणजे प्लांट की जो अरेंजमेंट रहती है, यानी जैव विविधता नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन प्लांट की अरेंजमेंट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में. ओके, द लैंटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स, यहाँ पर हम वाटर इकोसिस्टम कह सकते हैं उसको. क्या आएगा फिर इसका आंसर? Standing H2. या स्टैंडिंग H2 आएगा हमारा. ओके, स्टैंडिंग H2. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. X eating curd effort for this food take a food chain, he should be considered as occupying. चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है यहाँ पर. ओके, इस क्वेश्चन को मत लो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड, कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी स्टोर कर रहती है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसने जो Net primary. primary productivity. या फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं हम उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ओके, नेट एनर्जी उसको हम एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं हम उसको. ओके, हाउ मच प्रोटीन अ वर्किंग वुमन मस्ट इनटेक एवरी डे? 37 grams. 37 37 या फिर 37 ग्राम. 37 या फिर 45. मम्मी ना मास्टर जाऊन कोर्स करून तुम्ही ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नॉट 37, 45 ग्राम लगता है, 45 to 50 ग्राम लगता है. ओके, एवरी डे 45 to 50 ग्राम लगता है. ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम? किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल है? योर क्वेश्चन भी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. Elephant. Elephant. काय आहे उत्तर मग? हेलो स्टूडेंट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट है? Elephant. टेरिडोफाइटा. यस, ऑप्शन बी करेक्ट. टेरिडोफाइटा में लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. नियर अबाउट 3000 के नियर अबाउट क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है. चलो एक क्वेश्चन बहुत इजी है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन? Fish, option A. फिश स्किन के नहीं, पर्टिकुलर फिश का जो गिल्स रहता है उसी के थ्रू वो
ब्रीथ करता है, Frog. लेकिन फ्रॉग सर यहाँ फ्रॉग पर हम स्किन के बारे में Frog. बात करें। Frog. यस, ऑप्शन सी फ्रॉग। ओके, तो कॉकरोच करता है ना स्किन से तो। नो, कॉकरोच नॉट अ फिग, फ्रॉग करता है। ओके, बॉडी इज एन, कनेक्टिव टिश्यू। यस, बॉडी इज एन कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म? किसमें होती है लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन? लंग बोन। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लिवर में होता है फॉर्मेशन। ओके, और वो मैच्योरेशन के लिए फॉर्मेशन लिवर में होता है, और वो मैच्योर बनने के लिए बोन मैरो में चली जाती है। और स्प्लीन में किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी। यस, स्प्लीन में RBC आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, यहाँ पर अगर डब्ल्यूबीसी के मैच्योरेशन के बारे में बात की जाए तो हम इसका आंसर लिखेंगे बोन मैरो, लेकिन फॉर्मेशन लिवर में होता है और वो मैच्योर होने के लिए बोन मैरो में चली जाती है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोरेलॉइड रूट आर फाउंड इन, किसमें रहते हैं कोरेलॉइड रूट? देखो, कोरेलॉइड रूट इज द एडवांशियस रूट in which they are able to, there is presence of cyanobacteria in their root, they was able to nitrogen fixation. Yes, cycas, option C is correct, cycas में रहते हैं correlate roots. The largest oogle is, किस प्लांट का वो जो सबसे लार्जेस्ट रहता है? साइकस साइकस यस यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइकस का जो वूल रहता है उसकी शेप सबसे बड़ी रहती है, साइकस। द चालगोजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, हुआ ये क्वेश्चन हुआ हमारा भी।